बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। इट इज़ अवर थर्ड लेक्चर for the science grade 7 in Cantab lecture series. This lecture is actually the continuation of previous two lectures in which we have studied about organ systems. We learned what are organ systems. We also go through the major organ systems of our body. Then we studied the major components of digestive system. In our current lecture, which is the continuation of previous lectures, we will discuss the importance of the digestion process whose components we studied in our last lecture. Moreover, we will also discuss how digestive system helps in the digestion of various kinds of foods. We know that our food contains many nutrients, just as carbohydrates, proteins, and fats. How all these nutrients are exactly made the part of our body, we will see in our third SLO. Let's start our lesson. Before discussing the importance of digestion, it will be necessary if we go through or revise or summarize all the main points of digestive system that we have read. The picture will help us a lot in this regard. In order to make our study easy, we divide the digestion process into main categories, which one of them is physical breakdown, we know that when the food is in our mouth, our teeth with the help of saliva and movement of tongue breaks down the larger food bites into smaller particles. So the physical breakdown is the breakdown of larger bites into smaller particles. So the question arises, where does in all the digestive tract the physical breakdown takes place? The physical breakdown takes place in mouth with the help of teeth and movement of tongue. The second physical breakdown of food with bolus takes place in stomach. And how does it take place? With the help of contraction movement of muscular walls. The third physical breakdown of food takes place in small intestine. And how does it take place? With the help of peristaltic movements.
as well as contraction of the walls of small intestines. Peristaltic movements actually help the food to push forward. So, physical breakdowns take place in mouth, small intestine and stomach. The next category of digestion is chemical breakdown. What does it mean? Chemical breakdown means the conversion of components of food into simpler substances. As we have already read about it, carbohydrates are changed into monosaccharides. Or simple sugars. Monosaccharides are also called simple sugars. Proteins are changed into amino acids. And fats are changed into fatty acids. Our body cannot, it is necessary to do this conversion because our body cannot assimilate or absorb or utilize all these components, carbohydrates, proteins and fats, but our body can use very efficiently monosaccharides, amino acids and fatty acids to produce energy. So it is necessary to convert these larger components into smaller or simplest one so that our body can use them and generate energy that we use to do our work. The next question is, where does the chemical breakdown takes place? Just recall your previous lessons where we have read that chemical breakdown starts in the mouth, where the saliva in the mouth mixes with the food particles and digests the carbohydrates into monosaccharides. So the first place of chemical breakdown is mouth. And what does breakdowns here? Carbohydrates with the help of saliva. Saliva contains actually an enzyme, salivary amylase. The word ACE means it is an enzyme. Word ACE always denotes an enzyme. So the chemical breakdown also starts in the mouth. The next destination of chemical breakdown or next stage of chemical breakdown takes place in stomach, where hydrochloric acid along with its gastric juices breaks down the protein into amino acids. HCl plus gastric juices breaks down proteins into amino acids. So, and the third breakdown of food, chemical breakdown of food, takes place in small intestine. And you know very well how this breakdown takes place, with the help of bile that comes from gallbladder and liver, as well as pancreatic juices that are released from pancreas into small intestines.
bile is specifically reserved or specific for the breakdown of fats. All the fats in the food is broken down into the fatty acids with the help of bile that is released by liver and gallbladder. And the pancreatic juices break down all or assimilate all other components of the food. So our chemical digestion process initiates in the mouth, continues in the stomach and completes in the small intestine. ये तो थी हमारी छोटी सी स्टोरी डाइजेशन की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन। हमारे लिए ये तमाम फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। इसका कुछ जवाब तो आपको पहले ही मिल गया होगा कि अगर हमारे फूड के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी एसिमिलेट नहीं कर सकती, हमारे फूड के कंपोनेंट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की फॉर्म में है, इस फॉर्म में बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को इस फॉर्म में चेंज किया जाए जिससे हमारी बॉडी इजीली इन्हें एब्जॉर्ब कर सके और इसे यूटिलाइज कर सके एनर्जी मेकिंग के लिए, क्योंकि फूड इनटेक का बेसिक पर्पस एनर्जी प्रोडक्शन है। फूड हमें टेस्ट तो देता है लेकिन इसका बेसिक पर्पस एनर्जी प्रोडक्शन है। अगर सिर्फ टेस्ट ही लेना होता तो फूड इतना अहम ना होता। सो the breakdown of food into useful nutrients is the basic purpose and the basic important feature of digestion process. Just suppose for a while, if digestion doesn't take place or the digestion of any components retarded, what will happen? Our body straight away will deficient in that particular nutrient. अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन रुक जाए तो हमारी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में फैट्स की एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन रुक जाए तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में वो काम जो फैट्स अंजाम देते थे, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते थे, हमारी बॉडी को इंसुलेट करते थे, तो हमारी बॉडी ना तो इंसुलेट हो सकेगी अगेन टेम्परेचर वेरिएशंस और ना ही हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट कर सकेगी। इसी तरह प्रोटीन्स अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो सकें, प्रोटीन्स अगर एमिनो एसिड्स में चेंज ना हो और हमारी बॉडी का हिस्सा ना बन सकें तो क्या होगा कि हमारी टिश्यू मैनेजमेंट नहीं होगी, टिश्यू रिपेयरिंग नहीं होगी, टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, अल्टीमेटली हमारे वुंड्स हीलिंग नहीं हो पाएगी। सो assimilation of all the nutrients is very necessary for a healthy body working. It is the basic purpose of digestion system. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा SLO था कि वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स कैसे डाइजेस्ट होती हैं। इसका बेसिक प्रोसेस तो हम पढ़ ही चुके हैं, एक दफ़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। सब कुछ हमने पढ़ा था और कि माउथ में केमिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन होते हैं किसमें, मोनोसैकेराइड्स में। और ये किसकी हेल्प से होता है, स्लाइवा की मदद से। स्लाइवा में एक एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज, ये स्लाइवरी एमाइलेज इस कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद अब फूड स्टमक में आती है, स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है। और ये प्रोटीन्स किसके थ्रू ब्रेकडाउन होती है स्टमक में, एक एंजाइम है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो कि स्टमक की वॉल से रिलीज होते हैं वो प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं एमिनो एसिड्स में। उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स यानी फैट्स डाइजेस्ट होते हैं और ये किसकी मदद से डाइजेस्ट होते हैं, बाइल से। बाइल एक केमिकल है जो कि रिलीज होता है लिवर ग्लैंड से। ग्लैंड्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं कि ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन रिलीज करते हैं, तो बाइल भी लिवर की एक सिक्रीशन है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी एसिमिलेट होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और ये पैंक्रियाटिक जूसेस की मदद से डाइजेस्ट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूसेस जो कि पैंक्रियाज रिलीज करती है, पैंक्रियाज एक हमारा एक और ग्लैंड है, ये ग्लैंड पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और ये जूस कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज कर देते हैं मोनोसैकेराइड्स में, एमिनो एसिड्स में और फैटी एसिड्स में। इस तरह हमारे फूड के तमाम कंपोनेंट्स स्मॉलर पार्टिकल्स में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं
जहां से वो इजीली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमारा SLO, हमारे 3 SLOs कंप्लीट होते हैं जो कि थे कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स। अब हम आते हैं इनके होमवर्क की तरफ। होमवर्क सबसे पहले है, आप अपना समर पैक खोलिए, समर पैक का चैप्टर 1 देखिए और इसमें क्वेश्चन आंसर का सेक्शन निकालिए। उसका रेलेवेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मीन फिजिकल, which is tangible, which we can see with our eyes. So आप पढ़ चुके हैं कि फूड का डाइजेशन प्रोसेस 2 तरह से होता है, केमिकल और मैकेनिकल। आपने उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो बयान करना है, एग्जांपल्स देनी है कि किन किन ऑर्गन्स में मैकेनिकल डाइजेशन होती है और किन ऑर्गन्स में केमिकल डाइजेशन होती है। सो इस तरह आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 3rd क्वेश्चन है, लास्ट नाइट यू हैड अ बारबेक्यू एंड एट मीट एंड वेजिटेबल्स, which enzymes or chemical substances help meat to digest in your stomach? A very very easy question but a tricky one. How? अब आपने ये बताना है कि बारबेक्यू जो हमने किया, ठीक है, हमने हमारा जो फूड था वो बारबेक्यू जिसमें मीट था और वेजिटेबल्स थी, हमने वो इनटेक किया। अब ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो मीट को और वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में मदद देंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीट के कंपोनेंट्स क्या हैं। मीट में ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बायोन्यूट्रिएंट्स है जो प्रेजेंट होता है। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मीट कंटेन्स प्रोटीन्स, मीट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। सो ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं वो आपने बयान करने हैं। वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है? वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स में फैट्स का भी लिटिल बिट, नहीं फैट्स ज़्यादा नहीं होते, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ हमें मिनरल्स और विटामिन्स देते हैं। सो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे। So, आप ये बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। सो आपका आज का होमवर्क यहीं तक एंड होता है। वी होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड एंड हैव बीन एबल टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स and the importance of digestion as well as the digestion of different kinds of foods. Next come the disorders of digestive system that will be discussed in the next lecture. Thank you very much. Up till then.